हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं रेडी हो गई हूँ एंड आज मैं करने वाली हूँ एक अपना सोलो ट्रिप, अनप्लान्ड सोलो ट्रिप इन द यूके। एंड कहाँ जाने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता, वो मुझे अभी चेक करना है कि देखती हूँ कौन कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ मैं एकदम से सिलेक्ट कर सकती हूँ और जा सकती हूँ, शाम तक वापस आ सकती हूँ। तो आई एम गोइंग टू डू दैट डे ट्रिप और मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने वाली हूँ। नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं ऑब्वियसली बताऊंगी, लेकिन लेट्स डिसाइड द प्लेस फर्स्ट क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9 AM और मुझे लेट हो रहा है। So guys, I'm on my laptop and let's just start searching places and मैं प्लेस कोई भी ऐसा सर्च करने वाली हूँ कि मुझे बस मिल जाए एंड मुझे शाम तक आने के लिए लाइक अराउंड 7-8 के अराउंड मेरे को वापस आने के लिए भी बस मिल जाए। तो ओके, लेट्स सी। ओके, so I am in the Coventry एंड मुझे देखना है कोवेंट्री के आसपास कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से प्लेसेस अवेलेबल हैं। और मैं अभी तक सिर्फ एक या दो प्लेसेस पे गई हूँ, तो आई हैव नो आइडिया कि कौन कौन से प्लेसेस का कैसा सब क्या सीन है। आई वांट टू गो इन अ डिफरेंट सिटी, so to visit near Coventry. Yeah. Kenilworth, Warwick, Hutton, Derby. Where should I go? Okay, it's not too far. We can go to Kenilworth. Let me see what we have in Kenilworth to visit. One is Kenilworth Festival. I'm not interested in theaters and art centers and all. I want to see some open places kind of thing only. Kenilworth is here. Lamingtons. Oh, let's see for this. I heard about this place also, Lamington Spa. Twenty-one minutes via Kenilworth Spa. Okay, so I can do one thing, like I can go from Coventry to Kenilworth, and from Kenilworth, if I'll have time, then from Kenilworth to Royal Lamington Spa. Fine, Kenilworth decided. We'll see what we will visit there और वहाँ पे क्या क्या सब सीन है। तो देखते हैं। Like Kenilworth bus, I want to go by bus. It's night 9. Oh, I won't be able to pick this 9:35, 9:50. 9:55. Okay, either I can pick 9:50 or 9:55 from Transformers from Four Meadows station. Okay, fine. I'm leaving for Kenilworth now, and then अगर कुछ और plan रहा तो we'll see. So fine. सो गाइज, आई हैव पैक्ड माई बैग, लाइक जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं, स्नैक्स और अपना पावर बैंक वगैरह, बॉटल वगैरह सब मैंने रख लिया है एंड आई एम रेडी टू गो नाउ। सो लेट्स गो। सो गाइज, आई एम गोइंग टू बस स्टॉप नाउ एंड
आई टेक बस और वहाँ से मैं जा रही हूँ कैनल बर्ड फर्स्ट। तो देखते हैं कैसा सब सीन होता है। लेकिन ऑन द वे टू माई बस स्टॉप कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले बता दूँ, लाइक वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, वाई एम रिकॉर्डिंग माई डे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ ब्लॉगर और समथिंग, एंड मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग और समथिंग और शेयरिंग माई डे विद एनी वन, बट द पॉइंट इज of making this video is something else. Okay, so this is not the first time when I'm doing something like this, that you know, solo trip or for a day or something like that. I have done this kind of thing in India. So like last year when I was in India, like I was in Hyderabad. So at that time in December, I did a similar kind of thing, like I went to a place and then visited a new place alone and visited, meet new people. Especially I am from MP and I was in Hyderabad. तो वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, स्पेशली लोकल लोगों के साथ, एंड विद अब जब यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, यू डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, और एक नई प्लेस पे जाना विद सम क्यूरियोसिटी दैट व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। यू रियली डोंट नो कि क्या होने वाला है और what you gonna see, completely unexpected. तो for me it's always exciting, curiosity कि हाँ पता नहीं क्या होने वाला है, let's see how it will be. And I was thinking about this from a very long time कि let's see something like this in the UK also. Now the point is doing it alone, because when you are with your friends, see, this is what I believe, that you know, if you are going on a trip or if you are going somewhere visiting any new place, you should go with your friends or family. That's true, but sometimes what I feel, this is also important. You know, like when you are going alone, you are with yourself, you are just talking to you, and at that time, you know, when you don't know anything about the, you ask people, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो और कुछ नई नई चीज़ें देख रहे होते हो। हमेशा आपका जो दिमाग होता है, लाइक वो फ़ोन या बाकी चीज़ों से हटके कुछ नया देख रहा होता है, सोच रहा होता है, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अब मैं इसे रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ? देयर आर टू मेन रीजंस। सबसे पहला, आई वॉन्ट टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स जो भी मेरे रहे, वाई ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट एंड ऑल। सेकेंड थिंग, आई हैव नॉट डन दिस काइंड ऑफ थिंग प्रीवियसली, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो आई वॉन्टेड टू डू दिस ताकि मैं जब बाहर निकलूँ एंड आई हैव कैमरा इन माई फोन, सॉरी, like I'll have phone in my hand and I will record like this. क्योंकि okay, there is a long story. स्टार्टिंग में जब मेरा था कि हाँ, इवन मुझे अपना फेस शेयर करने में भी इतना प्रॉब्लम होता था कि यार why will I share, क्या लगेगा, कितना अजीब लगेगा, एंड लाइक दैट। बट धीरे धीरे थ्रू यूट्यूब, थ्रू वेरियस थिंग्स, सोशल मीडिया एंड ऑल, उसको कवर करने की कोशिश की। I have not done this previously, like you know, पहले कभी किया नहीं कि हाँ मैं जा रही हूँ and I'm recording stuff like this in public. So I wanted to take this experience that I'm going, and I wanted to share, oh, what's gonna happen, what I'm going to do today, which is even I don't know. And especially मैं अगर बाहर हूँ, वो भी वहाँ जहाँ कोई मेरे को जानता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है मेरे बारे में कुछ भी, आई कैन डू फ्रीली वॉट एवर आई कैन रिकॉर्ड, आई कैन टॉक अबाउट एनी थिंग। आई मीन कुछ है ही नहीं सोचने के लिए इस टाइम पे। सो दैट्स द मेन रीज़न कि मेरे को अपना ये एक्सपीरियंस लेना था कि मैं बाहर जा रही हूँ कहीं पे, तो मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करूँ, शेयर करूँ, रिकॉर्ड एज इन publicly, you know, camera लेके and all. So I just wanted to take that experience. So yeah,
that's the main reason why I am recording all these things. And yes, now the most important thing, so मैं आपको clear कर दूँ, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आई नो इट्स लाइक, मेरे को भी बोलते हैं हाँ इट्स रिस्की, यू शुडंट ट्रैवल एट अ न्यू प्लेस वेयर यू डोंट नो अबाउट दैट. What I believe or what I feel, it's completely okay if you are going at a new place, and you should go. The point is you should be careful. So if you are going at a new place, it's good कि आप पहले से चेक कर लो आने जाने के, स्पेशली कि आप वहाँ कैसे जा रहे हो, कैसे आ रहे हो, टाइमिंग्स क्या रहेंगी. और उसके बाद डोंट गो एट एनी प्लेस जो मतलब यू नो जहाँ पे लोग वोग नहीं हैं और क्राउडेड नहीं है. आई प्रेफर टू गो ओनली पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे इवन आई डोंट नो एनी वन बट लोग हो. मैं ऐसे नहीं जा सकती किसी भी प्लेस पे, मुझे खुद डर लगता है. आई डोंट नो, कुछ डर लगा कुछ हुआ तो मैं इवन किसी को बोल भी नहीं सकती. तो आई जस्ट वांट टू हैव पीपल अराउंड मी, दैट्स इट. दूसरी चीज़, यू शुड हैव सम ऑफ द की थिंग्स लाइक यू नो जो बेसिक थिंग होती है, यू शुड टेक ऑल दोज थिंग्स इन योर बैग लाइक लैपटॉप और सॉरी पावर बैंक और स्नैक्स वगैरह, वाटर बॉटल, वो सारी चीज़ें. थर्ड थिंग, इन्फॉर्म टू समवन, either your family members or your friends. So yeah, I have informed to my friends that yeah, I'm going today for such kind of things. So yeah, that's it. Let me take my bus and then we'll continue our journey. So guys, I'm waiting for my bus now. It will come at around 11:52. And we have time, so let's talk. Okay, so सबसे पहले तो मैं really I'm so excited because let's see what places I'm going to visit there और क्या क्या मैं वहाँ करने वाली हूँ. तो सब कुछ एकदम अनप्लान्ड होने वाला है, लाइक अनप्लान्ड है, कुछ प्लानिंग की नहीं है. तो लेट्स सी कैसा सब सीन होता है वहाँ पे. और आई विल शेयर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस जो भी मैं फील करने वाली हूँ अबाउट एनीथिंग, इधर गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस और एनीथिंग, सब मैं शेयर करने वाली हूँ. तो लेट्स सी मेरा आज का दिन कैसा जाता है. एंड देयर इज़ वन मोर स्टोरी, लेट मी टेल यू दैट, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली मुझे तो बहुत हेल्प की है ये सब चीज़ें. फर्स्ट थिंग, यू बिकम स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग समथिंग, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर बार यू नो यू आर हैविंग पीपल अराउंड यू जो भाई आपके साथ चल रहे हैं. और बहुत टाइम ऐसा होता है जब आपको अकेले ही ट्रैवल करना है, विजिट करना है, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग. जैसे कि अब भी हुआ था जब मैं इंडिया से यूके आ रही थी. आई डोंट नो इवन जब मैं आई थी आई रियली डिडंट नो इवन अ सिंगल पर्सन इन द यूके जिसको मैं कुछ पूछ सकती थी या कुछ बता सकती थी. आई केम टू द यूके क्योंकि मुझे आना था. और ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्ट इंडिया से यूके आ गई थी. सबसे पहले मेरा कवर हुआ लाइक मेरे होम टाउन से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, दिल्ली रही थी, दिल्ली से फिर मैं हैदराबाद रही थी कुछ महीने, डिफरेंट रीजन एरिया. और उसके बाद फिर मेरा यूके हुआ है आना. और जब मैं आई थी बहुत सारी चीज़ें थी यू नो, जब दैट आई फेल्ट कि हाँ अच्छा हुआ मैंने इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी की, क्योंकि वो सच में मेरे को बहुत हेल्प की थी जब मैं यहाँ आई थी. एंड आई रियली डिडंट नो एनी वन जिससे मैं कुछ हेल्प ले सकती थी या कुछ पूछ सकती थी. स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट डे इन द यूके. जब मैं आई थी मॉर्निंग में, मेरा फ्लाइट लैंड हुआ था. आई वॉज एट द एयरपोर्ट. वहाँ से मुझे बस मिली कोवेंट्री आने के लिए. अब मैं कोवेंट्री आई हूँ विद 70 kg लगेज, 3 जो है ट्रॉली बैग्स एंड 1 कैबिन बैग. सो टोटल 4 बैग्स विद मी एंड टोटल वेट वॉज अराउंड 70 to 75 kg. और उसके बाद मैं वहाँ बस स्टॉप पे हूँ. मुझे पता है मेरा एकोमोडेशन कौन सा है, बट मुझे पहले एकोमोडेशन ऑफिस जाना था, वहाँ से अपनी कीज़ कलेक्ट करनी थी और उसके बाद मुझे मेरा एकोमोडेशन जाना था. अब मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ तो मैं पूछ भी नहीं सकती कि भाई मुझे कैसे जाना है या कहाँ से क्या लेना है. आई वाज जस्ट कम्प्लीटली ट्राइंग कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है. वो जस्ट ट्राइंग ऑल द थिंग्स कि जो वर्क कर जाए बस ठीक है.
क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पहुँची, जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ मेरे सारे बैग्स लगेज वगैरह, और उसके बाद चेक कर रही हूँ गूगल मैप वगैरह पे, देख रही हूँ सब क्या सही है। बट आई डोंट नो व्हाई मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। गूगल मैप पे भी मेरे को समझ नहीं आ रही है लोकेशन वगैरह, क्योंकि नई क्योंकि सारा एकदम कुछ सब कुछ चेंज, रूल्स वगैरह यहाँ पे, रोड ट्रैफिक सारा कुछ ही चेंज। तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मेरे को कैसे जाना है, कहाँ जाना है। जैसे ऐसे करके मैं पूछे लोगों से, लोकल यहाँ के लोगों से कि ये एड्रेस कहाँ पे है, कैसे जाना है। और उसके बाद जब मैं मेरे एकोमोडेशन पहुँच गई थी, वहाँ मैंने कॉल किया दैट आई हैव रीच्ड और मुझे कीज़ वगैरह चाहिए। देन आई गॉट टू नो कि नहीं, मुझे किसी और जगह जाना है कीज़ कलेक्ट करने के लिए। शिट। एंड विद दैट अराउंड 70 kg ऑफ लगेज, मुझे फिर किसी और जगह जाना था मेरी कीज़ कलेक्ट करने के लिए। अगेन आई कांट टेल यू हाउ आई डिड दैट, बट एनी हाउ आई जस्ट मैनेज दैट। मैं दूसरे एकोमोडेशन गई, वहाँ से अपनी कीज़ कलेक्ट की। फिर मैंने उस टाइम पे कैब वगैरह बुक की मेरे वापस उस एकोमोडेशन पे जाने के लिए। मैं वहाँ पहुँच गई हूँ। नाउ आई एम कंफ्यूज, मेरी बिल्डिंग कौन सी है मुझे आइडिया भी नहीं है, क्योंकि वहाँ सारा कुछ तो सेम दिख रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी बिल्डिंग कौन सी है। इट वॉज कन्फ्यूजिंग। मैं वहाँ लोगों से पूछ रही हूँ आसपास, बट टू बी ऑनेस्ट किसी को नहीं पता। आई एम आस्किंग, हे डू यू नो अबाउट पैरिश रूम्स? No idea. I'm like, how is it possible? You are in the same street. I know I'm at the correct street, but I'm just confused with the building कि कौन सा है. And people like no, they don't know. I was like, shit. I'm just roaming around like अपने सारे लगेज के साथ इधर उधर मैं हो रही हूँ, देख रही हूँ, बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किसको पूछना है, कैसे पूछना है, क्या पूछना है, पता नहीं. I was having key with me. मैंने कॉल करके भी पूछा था कौन सा एकोमोडेशन है क्या है, एंड देयर लाइक कि वहीं पे वही पैरिश रूम्स है, बट देयर वाज नो वन जिसको मैं पूछ सकती थी भाई यही मेरा एकोमोडेशन है क्या. आई जस्ट वेंट लाइक और जो मेन डोर होता है लॉक था. आई वाज हैविंग कीज विद मी. अब मैं उसको अनलॉक करके देख रही हूँ, वो अनलॉक हो गया. दैट मीन्स ओके दिस इज़ माई एकोमोडेशन. सो दिस इज़ हाउ आई गॉट टू नो, हाउ आई कन्फर्म कि हाँ ये मेरा एकोमोडेशन ही है. क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कीज थे उससे वो लॉक जो था वो अनलॉक हो गया था. अंदर गई. अगेन मेरा जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वापस से सारा सामान फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाना. और लाइक सपोज मैं फ्लैट इज़ फ्लैट 4. अब मुझे कंफ्यूज, जैसे जैसे वापस से मैंने कीज से ओपन करके देखा, वो ओपन हो गया. ओके दैट मीन्स दिस इज़ माई फ्लैट. तो ऐसे मैंने वो फ्लैट अपना कंफर्म किया. और अब रूम की बारे, like I had a different key for my room, so I just checked the number. Okay, room 3. I just unlocked that door. Unlock हो गया with my key. So I'm like, okay, that means this is my room. So literally this is how I confirmed my accommodation and my room by just unlocking with the keys. कि वो unlock हो रहा है, that means this is my accommodation, this is my room. एंड उसके बाद आसपास भी कोई नहीं. आई मीन लिटरली अराउंड में आई डिडेंट मीट एनी पर्सन जिसको मैं ये पूछ सकती थी भाई कैसे सब सीन है, क्या सब सीन है और क्या है. तो इट वॉज समथिंग कि आई जस्ट मैनेज एंड आई वॉज रियली फीलिंग बैड कि देयर इज़ नो वन जिसको मैं कुछ पूछ सकूँ, कुछ बता सकूँ. बट ठीक है, आ गई हूँ, कोई ऑप्शन भी नहीं है. सो बहुत बार ऐसा होता है when you don't know and you are just going somewhere and you really have no idea but you have to do. तो ये जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, I feel it gives you confidence, जो हेल्प बहुत करती है जब आप कुछ ऐसा बड़ा कुछ कर रहे होते हो. So yeah, that's it. Let's go.
So guys, it's a story time. I was waiting for my bus and my bus was coming at 11:23, but I missed that bus. And then the next bus timing was 11:53, is 11:53, but I don't know क्या thought I made में. I just saw this. Let me share if we can. Okay, so what I did, like there is the cycle stand. I saw, मैंने अभी तक ये साइकिल कभी यूज़ नहीं की है, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस ऑल्सो कि कैसे चलता है. मेरे को साइकिल चलाना तो आते हैं, इंडिया में काफ़ी चलाई है, तो आई वॉन्टेड टू टेक दिस एक्सपीरियंस कि कैसा सब सीन होता है. एंड या आई डिड दैट फ्रॉम दैट बस स्टॉप टू मैं अभी दूसरे बस स्टॉप पे आ गई हूँ. कोवेंट्री में ही हूँ मैं अभी भी, बट या आई एम एट डिफरेंट बस स्टॉप नाउ. एंड आई डिड दिस बाइक राइड. और थोड़ा सा कंफ्यूजन ही हुआ कि आई डोंट नो हाउ टू अनलॉक दिस, सॉरी हाउ टू लॉक दिस. आई अनलॉक, आई डिड माई राइड, बट I just, okay, I did log. I'm not sure whether it logged properly or not. Then I asked someone, confirmed, hey, is it logged or not? I used this bicycle for the first time, and then he confirmed that yeah, it's logged. So yeah, this is. Let's see what's next. So guys, this is the main bus stop of Coventry. Like अगर कहीं भी जाना हो तो यहाँ से buses मिल जाते हैं. Pool Meadow bus station. So this is the main bus stop of Coventry. Let's see मुझे मेरी बस मिलती है या नहीं मिलती है यहाँ पे. Okay, so अभी जो पहली बस मेरे को दिख रही है वो है लेमिंगटन स्पा के लिए 11:55 and it's 11:49 now. तो let's go for Leamington Spa and then we'll think about Kenilworth later. So guys, I have taken a full day pass and I'm going to Leamington Spa now, and once I reach there, we'll continue our journey. Guys, I'm still in the bus. It's 12:58 and I haven't reached Leamington Spa. So let's see how much time I will have there. So finally, I have reached here and I'm in the Leamington Spa. Guys, I just saw this Sri Krishna Mandir temple board. So let's go to temple first. Okay. Guys, it's closed now. So we'll see in the evening. अगर possible हुआ तो we'll come back. So guys, after doing some research on Google and all कि क्या क्या places हैं, और उसके बाद friends वगैरह से पूछा कि क्या क्या options हैं यहाँ पे, क्या क्या suggestions हैं, और उसके बाद I just talked to people who lives in Leamington Spa. They told me about one place that is one garden, and nearby there is one shopping center, and after that, like at the same place, there is one more place actually. So I'm going there now, and then let's see how is that place. So guys, I am at one place actually. It looks like a garden. Not sure ये वही garden है क्या जो वो लोग बता रहे थे, but it looks amazing. So I'm going to visit this. Let's see क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास.
guys, yes, this is the same garden. It's Jefferson Garden, and it's really amazing. So guys, I have visited this Jefferson Park, and to be honest, I really liked it. This was a place जैसा मेरे को चाहिए था ना, बिल्कुल वैसा ही, एकदम peaceful सा open place and all those kind of things. So I really liked this place. It was an amazing experience, and now I'm looking for the shopping market. Let's see कहाँ पे है, क्या है, and we'll see you there. So guys, this was the place at shopping market center, and मुझे कोई shopping वॉपिंग तो करनी नहीं थी. So yeah, I just saw that it's good. And अभी just मैंने गूगल पे देखा, there's one place, Royal Pump Rooms, something like that. तो अभी मैं वहाँ के लिए देख रही हूँ. Guys, this is Lamington Spa Gallery and Museum. Let's see what we have here.
सो गाइज दिस वॉज आर्ट गैलरी म्यूजियम एंड लेट मी टेल यू कि मुझे आर्ट्स वगैरह में ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है. आई रियली लाइक सीइंग दैम बट दैट्स ओके. आई मीन इतना ही है कि हाँ बस देखा अच्छा लगा, सब कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है. बट व्हेन आई सी एनी आर्ट और एनी म्यूजियम आई रिमेंबर माई फ्रेंड जिया. So she is very, very interested in art. She's an artist and कभी भी मैं म्यूज़ियम वगैरह देखती हूँ तो I just remember her, क्योंकि उसके साथ कहीं भी जाना होता था ना घूमने, तो इट्स लाइक कि अगर वहाँ पे कोई म्यूज़ियम है या कोई आर्ट गैलरी वगैरह कुछ है तो वहाँ तो जाना ही जाना है. कहीं भी जाए नहीं जाए बट वो चीज़ तो मिस हो ही नहीं सकती है. तो I just remember her when I see any art museum, galleries and all those stuff. So guys, मुझे दो और interesting places मिले. That is like one is All Saints Church and another one is Victoria Park. All Saints Church का मैंने देखा, वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, like 38 minutes walking distance. And जो Victoria Park है वो है around 10 minutes walking distance पे. सो अभी के लिए तो मैं प्रेफर कर रही हूँ विक्टोरिया पार्क. देन उसके बाद देखते हैं अगर कुछ मूड बना तो. सो गाइज इन द मेन टाइम लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स. One is like whenever we are traveling like this, so at that time we don't think about the destination. We just enjoy the path actually, like the journey, because it's always exciting. It always changes basically. So we enjoy that journey more than the destination. And another thing is, जब लोग कुछ बोलते हैं ना कि यार ये कैसे कर लिया किसी ने या वो कैसे कर लिया किसी ने, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सीन ये होता है कि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है. तो इट्स ऑल अबाउट कि व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन यू विल हैव टू कंटिन्यू ऑन टू आर्चरी. सो नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ भी करने का मन हो एंड यू थिंक ओ इट्स टू हार्ड और आई डोंट नो कैसे करना है क्या करना है, दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड. कोई ऑप्शन ही मत छोड़ो और कोई. जस्ट set your mind that I will have to do this because I don't have any other option. क्योंकि आपके पास options होंगे, you will really not do that. So it's all about options. When you will not have any other option, तो it's like कि करना ही करना है, अब कुछ हो ही नहीं सकता है. And उस टाइम पे सब कुछ हो जाता है. So guys, I just did this small zip lining and it was fun. It was really nice. So guys, this was all about Victoria Park. I really liked it and it's time to go now because I am also very tired and it's 4:15 but it's going to dark, so I'm going to leave now. But thank you so much if you are still watching this video. If you are still watching this video, that means you really liked my video and learned something and you are someone who supports me. So thank you so much for watching this video till end, and I hope you liked how I spent my day, whatever things I shared with you, my experiences. And after this, if you have thought about something, trying any new experiment or if you want to experiment something new, if you have decided, if you have thought something like that, do let me know in the comments. I would like to know what you have decided. So yeah, that's all. Thank you. Bye guys.